Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as in our first lecture, we have studied policy guideline of Federal Board कि आपको पेपर में क्या main abilities required हैं. I reiterate my stance that study of paper is primarily important before we come on to our regular textbooks and language studies. उसकी वजह ये है कि योर पेपर इज़ योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लाहौर जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो आपको ये पता ना हो कि आपका टास्क क्या है, काम क्या है. आप किसी विज़िट पर जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है, कोई और आपका टास्क है, कोई इन्विटेशन है, आपको ये पता नहीं, लेकिन आप जो है वो ट्रैवल अपना स्टार्ट कर दें. बेशक आप मोटरवे पर चले जाएं, आप ट्रेन पर चले जाएं, तो इट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा नहीं हो सकता. सेम इज़ द केस विद योर पेपर. और चूँकि ओवर द ईयर्स मेरा असेसमेंट एंड वैल्यूएशन मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी है, और मेरी एमफिल स्टडीज़ तक जो मेरा मेन कोर सब्जेक्ट रहा है वो मेरा ये असेसमेंट एंड वैल्यूएशन, इनकी टेक्निक्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं. इसलिए जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहले मैं आपको वो चीज़ डिस्क्राइब करता हूँ जिस चीज़ के लिए आपने 6 मंथ्स स्टडी करना है. इससे पहले हमने पॉलिसी गाइडलाइन स्टडी की, एबिलिटी स्टडी की काफ़ी सारी. अब हमने देखना यह है कि हमारी आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स which under which you have to attempt your paper. See, your paper is of 100 marks. It is not of 75 as you have attempted in your class 9th, or unfortunately could not do in your class 10th. Your paper is of 100 marks. The paper has been divided over different percentages. If you look at this, your 30% paper, it consists of your knowledge. Your 30% marks in the paper, they depend on your knowledge. And as I have stated earlier in my previous lecture, that knowledge represents your two things. Number one, it shows your language. How much knowledge do you have over your use of English language, right? Because I repeat that these two papers, English and Urdu, they are your language papers. And among these two, English is a typical language paper because you are not only being tried for your understanding of your text, but also for your attempt of your English language. Second, your knowledge regarding your subject. And as I have told earlier in my previous lecture, that you are not bound, limited only to your text which is given in the book. You must have some extra information about techniques, about different figures of speech, about general messages given in every chapter, about expressions, use of expressions, etc., different ideas, and a slight background of every chapter. So your 30% marks out of 100, that is your 30 marks out of 100, they depend on your knowledge. Now all those students who who think that with a bracketed study, a selective study of few chapters, questions, and memorizing of some things will provide them marks, so their 30 marks have already been lost in this due course of thought. Next, your 50% of your paper, it depends on your understanding. How do you understand a topic? And as I have told you earlier, okay, there are two things in which count to your understanding. One is your text, including your language. How you understand the language, how you understand the concepts, new concepts, challenging situation, and how you understand the text of your book. That is why I always say, whenever you are studying, you are reading a chapter in the class, you must have a highlighter, a pointer, which helps you to highlight important things. At the end, when you revise, these things come into your before your eyes. If the students, they don't have bring their books, they rely on other books, and they study casually, their 50% portion is lost.
So out of 100, you are left with only 30 marks. And to comply these 50%, your basic knowledge, previous 30% is mandatory. Without this, your paper is, so out of 100 marks, your 50 marks, they are dependent upon your understanding. Then you see 20% is application of all what you have learned earlier. One point in the previous lecture was ability to recall and apply in challenging and difficult situation. Out of all this, 20% is your application part, means how do you apply your knowledge as well as understanding of the whole subject. It means out of 100, 20 marks are your application. How you apply your knowledge, how you apply your understanding, not only from text point of view, but also from language point of view. So if we look at this, out of 100 marks, this is your whole division, that 30% goes to your knowledge of the subject, 50% goes to your understanding of the whole, and 20% is application of these two. If any of these, if you lack any of these skills or requirements, your paper is going to be flat, and you are in the words of Winston Churchill, your paper will only be a piece of foolscap, and ushers will collect your paper and hand over to the federal board. So keeping in this view, these are requirements. As far as this last requirement is concerned, time management, this is very, very important, and it is not only a requirement, it is basically a skill. Make it clear, your paper is of 100 marks, you are not provided extra time. Up to your matric, you have attempted paper of 75 marks, time was 3 hours. But here, marks have increased, but time is the same. And it also told you earlier that these 3 hours are not complete 3 hours. That exactly you at 0 hour time, you sit in your chair, you got the paper, and you get full CRs. No. This includes your sitting, after your sitting, your distribution of the paper, collection of paper, visits by superintendent, signatures, extra sheets, any other noise created by students, disturbances which divert your attention from the paper. So you should make it clear that this skill of time management, it is very, very important, right? And particularly in this context, when you have to pass through 3 different stages till end of your paper. What are different techniques of these time management? First of all, you must not prepare this subject verbally. जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम ये पेपर ज़बानी तैयार कर लेंगे, आखिर में बुक से देख लेंगे और पेपर कर लेंगे, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ कि many of our students of finest ability, they get less marks because they are unable to complete their paper. और अक्सर एग्जाम की ड्यूटीज़ में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनके पेपर हमें नज़र भी आ रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं, टाइम ख़त्म हो रहा होता है और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर 10 मिनट्स दे दें, 15 मिनट्स दे दें। उसकी वजह क्या होती है कि ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो हैं कि जिन्होंने अपने पहले फाइनल से पहले रिटन में पेपर को अटैम्प्ट ही नहीं किया। उनको नहीं पता कि उनका एक आंसर कितना टाइम ले रहा है, उनको नहीं पता कि लेटर राइटिंग कितना टाइम ले रही है, उनको ये आइडिया नहीं है पैराग्राफ राइटिंग कितना टाइम लेगी, और इसी तरह सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं पूरे पेपर की। तो ये आपके सारे का सारा जो है ये डिपेंड कर रहा है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल पर। अब इसकी क्या टेक्निक्स हैं, कैसे ये इनकलकेट होती हैं और कैसे आपने इसको मैनेज करना है, इसके बारे में इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में मैं स्टूडेंट्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस करता होता हूँ, एनुअल पेपर्स अटैम्प्ट कॉन्फ्रेंस, तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको पावर पॉइंट पर ये डिस्क्रिप्शन दूंगा। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बारहा पेपर लेते हैं, इतने पेपर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा हम भी कहते हैं जब वो पेपर चेक कर करके थक जाते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो उसमें से उसको सीरियसली लेते हैं, फुल अटैम्प्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं खुद को, तो एट दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेस कॉलेज के वही स्टूडेंट्स जो है वो पोजीशन भी लेते हैं, जैसा कि आप बेस कॉलेज के हवाले से आप लोगों को इल्म भी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट स्किल इट इज़ वेरी। नाउ
टू समराइज कि आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं अपॉन विच योर 100 मार्क्स आर डेवलप्ड। और स्टूडेंट्स क्यों बस फॉल कर जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके आते हैं अपने हिसाब से, ओके फाइन अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन इन सारे एस्पेक्ट्स पर कहीं ना कहीं उनकी जो है वो लैकिंग आती रहती है, और इसकी वजह से वो अपने इस सारी चीज़ को जो है वो अपनी एफर्ट को खो देते हैं। अब आपको मैं फिर एक बार ये रिपीट कर देता हूँ कि देखें ये आपका पेपर है और ये टोटली आपका राइटिंग बेस्ड है, सारी राइटिंग बेस्ड है, लेकिन ये वो पेपर है जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली राइटिंग है, पैराग्राफ ऑन पैराग्राफ ऑन पैराग्राफ, आपने आंसर्स लिखने हैं, प्लेस के लिखने हैं, पोएम के, चैप्टर्स के, लेटर, पैराग्राफ, उसके साथ साथ आपने डायलॉग भी अटैम्प्ट करने हैं, फिर दरम्यान में आपने ग्रामर के, लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं। तो आपकी ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इसके लिए मैं आप सब लोगों से, स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दें, बिकॉज दिस इज़ नॉट वन पेपर, दिस इज़ अ ट्रायल ऑफ टू subjects. One is your textbook and other is your language. As head examiner of federal board, let me make the things very simple and clear कि जब हम आपका पेपर 100 में से करते हैं तो we check it on 50 basis. There are 50 marks are for your book preparation attempt and 50 marks are for your grammar, ठीक है, यानी लैंग्वेज जो है उसकी अटैम्प्ट पर। तो lacking in any of these will definitely affect the other. अच्छा, अब यहाँ ज़रा ब्रेक लगा दें। After describing requirements, policy guideline, and what is expected of you when you are attempting the paper, let's have a review of what does your paper comprise of, or what are the components of your paper. Look at this chart. You have 4 components of your paper. Your first component is your language section, which includes study of parts of speech in detail. You have studied in your previous classes, but I am sure that a less majority of the students will have definitely studied these in detail. A vast majority of the students, they will have studied only by their titles. Here we have detailed study, identification level, with not with their main titles but with their titles of types. You have structure of sentences, another detailed study, structure of sentences, types of sentences, analysis of sentences, what are their components, what are their parts, etc. Then we have study of phrases, clauses, and some miscellaneous items. Mostly these form part of your objective paper, but they are not only end there. You have application of these concepts in your subjective paper as well. Your second component is your textbook. Your textbook is divided into different units. Every unit has 2 chapters and 1 poem. Your textbook is divided into different units. Every unit has 2 chapters and 1 poem. These chapters, they are called prose, which are your chapters. So your textbook, it comprises 3 main items: prose chapters, first 2 units of every chapters of every unit, poems, third chapter of every unit, and 1 last unit, that is totally 1 play. This is your textbook task. These 3 genres of literature, they have their own methodology of study, they have their own technique of answering, they have their own sets of questions. None of these is lesser than the other. Generally कभी स्टूडेंट्स का माइंड में रहता है कि तो पोएम है, बस ठीक है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, खैर है, कर लेंगे। लेकिन मैं आपको फिर आप ही की उसके एसेंशियल साइकोलॉजी के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी कोई चीज़ भी इसमें से लेस इम्पॉर्टेंट दूसरे के मुकाबले में नहीं है। और जैसा कि पहले हम अच्छे तरीके से इस बात को पढ़ चुके हैं कि आपका 50% मार्क्स, यानी 100 में से 50 मार्क्स आपके जो है वो सिर्फ आपकी स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या आपकी कंप्रीहेंशन एबिलिटीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप एक चीज़ को कंप्रीहेंड ही नहीं कर रहे तो आप उसका पेपर जाकर कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे। तो आपका जो टेक्स्ट बुक पार्ट है उसके फर्दर 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका है प्रोज,
प्रोज मीन्स नॉन पोइटिक, यानी आपने जो शायरी के उसमें लिखा हो इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखा गया हो वो दैट इज प्रोज। उसके बाद आपके पोएम्स हैं और एट द एंड प्ले है। हाउ वी हैव टू स्टडी दीज चैप्टर्स, पोएम्स एंड प्ले, दैट इज इन डिटेल। जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम इनको थॉरली इसकी पहले टेक्निक स्टडी करेंगे, उसके बाद इसको हम जो है वो इसकी रीडिंग की तरफ जाएंगे। और रीडिंग इनकी हमने कैसे करनी है, इंशाल्लाह इन डेप्थ रीडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एनी लाइन, एनी आइडिया, एनी एक्सप्रेशन कैन बी पार्ट ऑफ योर पेपर। Your third component is your applied language, where you have to make sentences of phrasal verbs. Phrasal verbs, for example, give up, account for, take on, abide by. Some of these phrasal verbs you have already seen in your class 9th or 10th level. तो ये वही चीज़ है, but level of difficulty may be higher. इसके लिए इंशाल्लाह we provide you a list of probable phrasal verbs जो expected हो सकते हैं पेपर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको जो टीचर्स पढ़ाएं कि वो इंशाल्लाह यहाँ पर इतनी डिटेल से हम उसको स्टडी कर लेंगे कि वो आप कोई चीज़ एक्सप्रेशन कोशिश करेंगे रह ना जाए। उसके बाद करेक्ट वर्ब, I have told you earlier that study of parts of speech is very important. हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो इसी चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह बेस्ड होगा। तो वर्ब की स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर बोथ ऑफ योर ईयर्स, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपकी जो स्टडी ऑफ वर्ब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ये आपका ये भी है, अप्लाइड है कि अब ये सारी चीज़ें हैं। आप ये देखें कि इफ़ यू लुक एट दिस होल इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कंपोनेंट्स एंड स्पेशली लुकिंग एट दीज कंपोनेंट्स, हमने स्टार्ट में एक बात की थी एबिलिटी टू रिकॉल द लर्न्ड डाटा और इंफॉर्मेशन। अब आपने इतने अरसे में लर्निंग क्या की है कि आपको एटलीस्ट ये भी ना पता हो पेपर में कि फुल स्टॉप कहाँ डलेगा, कॉमा कहाँ डलेगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ आ रहा है। तो जिस स्टूडेंट को ये भी नहीं आइडिया होगा तो उसने पहले क्या लर्निंग की है वो अपने हिसाब से अंदाज़ा कर ले। स्टूडेंट्स को जो है वो छोटी क्लासेस से ही पढ़ा दिया जाता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन यहाँ के ऊपर जनरली वर्ब की करेक्शन थोड़ी सी कंसर्न है। तो इंशाल्लाह हम जब स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके साथ हम वर्ब पढ़ लेंगे, यानी ऑल दीज टॉपिक्स इंशाल्लाह विल बी स्टडीड एज इन रिलेशन टू विद ईच अदर। इसके बाद हमारा एक लास्ट कंपोनेंट है विच इज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, जिसमें आपका राइटिंग बेस है। लुक एट दिस, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, translation from Urdu to English, dialogue writing. This is purely your composition. We call it composition, right? In study terms, we call it composition. आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में किया है, इंटरप्रेट किया है, ताकि आपको पता चले आपने डिस्क्रिप्शन है सारी, राइटिंग करनी है, डिस्क्राइब करना है। अब ये कॉन्सेप्ट अगेन स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ आएगी कि जी ये तो लेटर है तो हम ठीक है 9th 10th में कर चुके हैं, फाइन, आपने कर ली है, नो डाउट, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि अब आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो फर्स्ट ईयर का पेपर है इसका लेवल वो 10 years क्रॉस करके आगे चलकर आ रहा है, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन विद एडवांस्ड लेवल आपकी आएगी। लाइकवाइज पैराग्राफ राइटिंग है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी। अब आजकल ये कोविड-19 का सेशन चल रहा है तो मे बी कि आगे पेपर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ जाए। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, one paragraph of Urdu is given, you have to translate into Urdu. These, however, some of these they are in choice with each other. Then there is dialogue, a conversation between two characters. At the end you have CV writing. Looking at this question of CV writing, I will remind you of my लेक्चर आइटम कि फेडरल बोर्ड का पेपर का आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट एफएससी लेवल के ऊपर ज़्यादा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आइटम्स फ्रॉम हायर एजुकेशन। I told you earlier that I am a professor of communication skills and advanced English subjects like these. Many students face difficulty when they write something, और ये जो CV राइटिंग वगैरह है ये वो टॉपिक्स हैं जो हम उस लेवल पर M.Com, B.Com, ADP इन लेवल्स के ऊपर हम पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला क्या हो जाता है कि अब चूंकि आपको बताया था कि आगे चलकर
कंपटीशन इज राइजिंग, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर इन द फील्ड। हर जगह जहां आप जाएंगे आपका इंग्लिश की अटेम्प्ट कंपलसरी होगी, जैसे आपको पहले उसमें बताया था। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें आप प्रोफेशनल लेवल यहाँ के ऊपर आ रही हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसी तौर के ऊपर भी कोई भी आपको इस पेपर में रिलैक्सेशन नहीं है, आप इसको इजी उसमें लेने की पोजीशन में नहीं है। If we review all this, तो हो सकता है आपको लगे that it is an uphill task or it's very difficult, it's not possible to get good marks. No, it's not like that. Please don't make this kind of judgment. It is challenging, it's not difficult, it's a matter of your interest, it's not boring, it's not impossible. Make it possible. Your task will be easy, right? Your objective should be clear. जैसा बार बार चीज का बता रहा हूँ, पेपर पेपर पेपर, एट द एंड आपका पेपर काउंट होगा। पेपर मैनिफेस्टेशन आपका चैप्टर 2 और फर्स्ट ईयर एट हैरो, उसमें एक मास्टर है मिस्टर वेल्डन, उनके बारे में वो यही बता रहा है कि पेपर मैनिफेस्टेशन की सिस्टम पेपर मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। उनके अलावा तो हमारे सामने बोर्ड के सामने आगे एडमिशन के जो मेरिट्स हैं उसमें आपकी पेपर मैनिफेस्टेशन है, वो आप क्या करके आए हैं, हम जब चेक करेंगे तो हमारे सामने वो प्रूफ है। वी आर नॉट कंसर्न कि जी आपने उस वक्त हमें जब हम पेपर असेसमेंट एंड वैल्यूएशन में होते हैं फेडरल बोर्ड की, वी आर नॉट कंसर्न कि जी आप हमें नहीं पता कि आप क्लास में बैठे हुए थे, आए थे नहीं आए थे, राइट। वी आर कंसर्न कि हाउ हैव यू टेकन द चैलेंज ऑफ दिस फर्स्ट ईयर पेपर। The students who who polish their abilities with this, अब you have to interest in this English language। आगे चलकर आपने IELTS के पेपर भी देने हैं, साथ ही आपको बेसिक राइटिंग यही काम आएंगी। आपने आगे चलकर गेट के पेपर देने हैं, एंट्री टेस्ट के पेपर देने हैं, मिलिट्री के एग्जाम्स में जाना है, आगे चलकर आप सिविल सर्विस के एग्जाम्स में जाएंगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह आफ्टर योर टर्मिनल क्वालिफिकेशंस। आप फिर भी आपको इंग्लिश का पेपर आएगा, तो आपने FSC लेवल के ऊपर जितनी पेपर के हवाले से लर्निंग कर ली, दैट इज योर फाइनल। इसके बाद आपका आगे जो है वो सिलेक्टेड टास्क है, आपका लर्निंग लेवल यहाँ के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। तो मेरा एम्फेसिस बार 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 आपके ऊपर ये है कि देखिए उन्होंने अगर आप सारे को देखें, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के मेन सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेज, फ्रेजेज, क्लॉजेज, सब मिसलेनियस आइटम्स में पहले आपको हम इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने लिटरेचर की तीनों जर्नल्स, प्लेस, पोएम्स, प्रोज, तीनों इंक्लूड कर ली हैं। फिर करेक्शन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर राइटिंग का सेशन है, पैराग्राफ, लेटर, ऑल दीज थिंग्स दे आर एप्लीकेबल इन योर फ्यूचर। और आगे आपका जो सेकंड ईयर है वो आपकी उस प्रोफेशनलिज्म पर बेस्ड है जिसके तहत आपने फर्स्ट ईयर स्टडी की है। वंस यू गेट लेस मार्क्स इन फर्स्ट ईयर, you will be able to get better marks in total FSC, क्योंकि आप सेकंड ईयर में बेशक अच्छे ले लें, जो आपका कट फर्स्ट ईयर में लग चुका होगा वो आपके लिए लॉस होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं उसमें अगर आपका रन रेट जो है वो स्लो हो, स्टार्ट में बहुत स्लो चलता है, काफ़ी ओवर तक स्लो चलता है, तो एट दी एंड टीम पर क्या होता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। वो बेशक एट दी एंड जितना मर्जी है कर लें, विकेट भी और उसके साथ साथ जो है वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होता अच्छे टारगेट का। उसके लिए स्टार्ट से ही आपको अपना एक टेम्पो बनाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद देखेंगे कि जो जिस टेक्निक पे हम, जिस मेथडोलॉजी पे हम इंशाल्लाह आपको लेकर चलेंगे वो आपको बहुत वैल्यूएबल होगी। और आगे चलकर जब पेपर की बारी आएगी फिर आप रिकॉल करें उसको कि हमने स्टार्ट में जो 2-3 लेक्चर्स पेपर के ऊपर डिस्कशन पर लगाए हैं वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल। तो इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल पैटर्न ऑफ पेपर, किस कौन से क्वेश्चन है, किसके कितने मार्क्स हैं और किस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, थोड़ा सा हम उस टेक्निक पर भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्टली स्टडी ऑफ योर पेपर। अभी हमने गाइडलाइन स्टडी की है, कंपोनेंट स्टडी की हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके पेपर की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आवर टॉपिक इज स्टडी ऑफ पेपर पैटर्न। थैंक यू सो मच।